laptop or desktop purpose, you can go to run, and what you type here, wmic wmic bios get serial number. ये किसके लिए है? That is only check the particularly details for physical details. If you have any laptop, if you have physical desktop, that time you can go to run and type the serial number. But if you have any printer, if you have any video conference device, or if you have any scanner, that time how to check? You can check with particularly serial number sticker. You can check from the sticker. तुमको sticker से check करना है. So how to check that? Just simply I show you. तो देखो हर एक चीज में बैक साइड में ना पर्टिकुलरली स्टिकर्स रहता है, जस्ट लाइक दिस. So here you can detail, you are getting all the details. Serial number, this is the serial number exactly. X5CL01. So how you can check? You can check from the sticker. That is also very much important, because how we will identify the particular devices purchase date, device warranty, device AMC details. How you can find out? That is, you can find out with the help of serial number. So this is also very much important. You can check for desktop or laptop, you can running this comment. This is the details. And if you have any printer, or if you have any scanner or any particularly, you can check the sticker. Check the sticker. तुमको स्टिकर को चेक करना पड़ेगा. किसके लिए है? फॉर फाइंड आउट द सीरियल नंबर, as well as also asset tag also. Asset tag. Asset tag is what? Asset tag is also one type of very good information the company's device. Just for example, you are using HP laptop for IBM. So that asset sticker have to mention that only that particular device is used for the IBM. If you have you are going to an TCS company, then you can see the TCS. So there is also have particularly laptop assets depends on the organization details, organization devices. एसेट स्टिकर टोटली तुम्हारा इस एसेट आईडी के ऊपर डिपेंड. Next part is the very important maintenance and support. First 2 points is clear to everyone. Procurement and deployment is clear to everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. This Yes. is your whole responsibility. This is your own responsibility, because when you can installing operating system in company, there is lot of devices are there. 250 plus devices are there. Some organization 2500 devices are there. Some organization you can see the thousands devices are there. So how to manage? How to manage and maintain? That is managed with the help of IT asset lifecycle. This is the procedure. After that, what though? After assigning the all deployment, after allocating a particular asset to particular clients, जब तुम कोई भी यूजर के लिए पर्टिकुलर एसेट्स को कोई यूजर के लिए असाइन करोगे, आफ्टर दैट थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेंटेनेंस एंड सपोर्ट. ऐसा नहीं कि लैपटॉप असाइन कर दिया और छोड़ दिया, नहीं. लैपटॉप असाइन करने के बाद तुमको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि दैट पर्टिकुलर लैपटॉप इज हाउ द हाउ इट्स वर्क, मतलब कैसे वो वर्क कर रहा है, वो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि वो सही से काम करे कि नहीं करे, ये तुमको चेक करना होगा. तो उसके लिए क्या क्या चेक करना होगा? यू कैन परफॉर्मिंग द अपग्रेड्स. जैसे मान लो आज के डेट में कौन सा लेटेस्ट अवेलेबल है फॉर टूडेज मार्केट इन 2026. एवरी कंपनी, एवरी लैपटॉप, एवरी डेस्कटॉप यूजेस द SSD.
आज का डेट में हर एक इंडस्ट्री एसएसडी को फॉलो कर रहा है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली हार्ड डिस्क के ऊपर काम करता है। लेकिन कोई भी अपडेट करो, जैसे मान लो किसी यूजर का 4 GB रैम है तो उसमें 8 GB लगाना, you can upgrade the RAM or you can upgrade the SSD. That is also very important. As well as you can repair also. Just for example, you are assigning a laptop for a particular person and that user used this laptop for 5 years. तब वो 5 साल के बाद कुछ ना कुछ इशू हो सकता है, चाहे वो ओएस इशू हो सकता है या कोई पार्ट्स इशू हो सकता है या कीबोर्ड चेंजेस का इशू हो सकता है, कोई भी इशू आ सकता है। वो तुम आइडेंटिफाई कैसे करोगे? दैट इज ऑल्सो identify with the help of serial number, particularly asset tag, which particular users this device. कोई यूजर कोई यूजर्स को तुम कोई लैपटॉप असाइन करोगे या डेस्कटॉप या कोई भी डिवाइसेस असाइन करोगे, वो कौन सा स्टेट में है वो जानने के लिए तुमको क्या इंपॉर्टेंट है? दैट यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन विद द हेल्प ऑफ एसेट्स। तो अपग्रेड करने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू रिपेयर ऑल्सो एज वेल एज द सॉफ्टवेयर। कोई भी अपडेट है, जैसे मान लो आज के डेट में विंडोज 10 इज एक्सपायर एंड विंडोज 11 इज रनिंग, तो ऑब्वियसली यू कैन चेक द विंडोज 11 रिक्वायरमेंट्स। यू आर इंस्टॉलिंग एमएस ऑफिस which version, so that also you can follow the system requirement also. Under the requirement you have to upgrade the system. Monitoring performance and warranty status. परफॉर्मेंस मतलब तुम्हारा सीपीयू यूजेस चेक करना होगा, रैम स्टेटस चेक करना पड़ेगा, द एसएसडी स्टेटस आल्सो चेक, योर हार्ड डिस्क एसएसडी is attached, then hard disk SSD also you can check how it's work, the system is okay with operating system or it's need more resources। जो लैपटॉप में मेरा 4 GB रैम से यूज हो रहा है उसमें यदि हमको 8 GB लगे तो 8 GB हमको असाइन करना होगा। तो ये टोटली तुम्हारा किस पार्ट में आएगा? दैट इज कमिंग अंडर द मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। एवरीवन क्लियर? प्लीज कम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Clear, sir. sir. Yes, sir. Next part is the tracking and control. Tracking and control means keeping an updated inventory, monitoring asset movement and uses, and managing software license and avoid compliance issue। बहुत अच्छा से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यू नीड इन योर ऑर्गेनाइजेशन 100 एसेट्स। मान लो कोई यूजर्स के लिए कोई पर्टिकुलर कोई एक कंपनी के लिए तुम्हारे पास कितना एसेट्स है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू हैव 100 एसेट्स। उसमें कोई भी है, डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, प्रिंटर भी है, whatever। नाउ monitoring asset movement and uses, what is the meaning? Second point meaning, just for example you have 2 branches। कोई ऑर्गेनाइजेशन में मान लो तुम्हारा 2 ब्रांचेस का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू मैनेज योर 2 ब्रांचेस। वन ब्रांचेस लोकेटेड इन साइट ए, वन ब्रांचेस अवेलेबल इन साइट बी, बोथ आर इन डिफरेंट साइट, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? यू ओनली रेस्पॉन्सिबल। In these sites you have 50 assets, in these sites have total 50 assets, so that is also manage and maintain which assets are available in site A, which assets are available in site B। हमको कोई यदि 2 ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस में कौन सा एसेट साइड ए में है, कौन सा एसेट साइड बी में है, वो तुमको पर्टिकुलरली प्रॉपर इन्वेंट्री को फॉलो करना होगा। इन्वेंट्री ए, इन्वेंट्री बी। अभी ब्रांचेस ए के अंदर इन्वेंट्री ए को लिस्ट डाल दिया और इन्वेंट्री बी के अंदर तुमने लास्ट लिस्ट डाल दिया, तो वो भी इसी फॉर्मेट में तुमको यूज करना होगा। Here also you can creating the asset details, laptop, desktop, 50 laptop assign on seat 1, 50 laptop और 50 desktop assigned to the seat 2। तुमको सीट से मैनेज करना होगा। मैनेजिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड अवॉइड कॉम्प्लाइंस इशू, ये क्या है? जब तुम कोई भी सॉफ्टवेयर लाइसेंस असाइन करोगे कोई भी यूजर के लिए, that also you can check that particular software is activated or not activated। Don't use any third party application to the organization because that organization facing the compliance issue। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी थर्ड पार्टी टूल्स या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है जो कंपनी पॉलिसी के बाहर है।
क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपनी का पॉलिसी होता है। अब वो पॉलिसी को मैनेज करना, मेंटेन करना भी हमको इस पर्टिकुलरली आईटी सर्विस डेस्क का हो, या डेस्कटॉप सपोर्ट का हो, या सिस्टम इंजीनियर का हो, या सर्विस डेस्क इंजीनियर को, हर एक इंजीनियर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, that everything is your responsibility to manage and maintain. Everyone clear? Please confirm. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. आईटीएल से अच्छा से Yes, समझ में आ sir. रहा है कि नहीं है, पहले ये बताओ, पहले हाँ ये सर, कंफर्म। आईटीएल Yes, से sir. अच्छा है सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये सब तुम्हारा मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये तुमको मैनेज करना ही पड़ेगा भाई। लेकिन कैसे मैनेज करना है वो प्रोसीड्यूर में यहाँ पे डिस्कस करो, ताकि तुमको इंडस्ट्री में जाके कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट प्रोसीड्यूर इज दियर, ट्रैकिंग एंड कंट्रोल करने के बाद है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है रिटायर। अब तुम बोलोगे सर इसमें रिटायरमेंट का क्या अवेलेबिलिटी है? जस्ट फॉर एग्जांपल, इन योर आईटी इंडस्ट्री हैव 500 एम्प्लॉयज। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 500 एम्प्लॉयज है, उसमें से पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल 455 एम्प्लॉय और 495 एम्प्लॉयज आर वर्किंग, and 5 are going to left from your left from industry, left from organization. तो जब तुम ये 5 यूजर के लिए जो भी लैपटॉप असाइन होगा, जो भी डेस्कटॉप असाइन होगा, जो भी एसेट्स असाइन होगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज अंडर द डिस्पोजल। बहुत अच्छा से समझो। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट? फर्स्ट रेस्पॉन्स इज द सिक्योरिटी, सिक्योर डेटा वीपिंग। व्हाट इज द सिक्योर डेटा वीपिंग? व्हाट इज द मीनिंग? परमानेंटली डिस्ट्रॉइंग द डेटा एंड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो डेटा कभी भी रिकवर नहीं होगा, उसी के फॉर्मेट में हमको क्या करना होगा? परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना होगा डेटा को। ऐसा नहीं कि कोई यूजर, ये जो 5 यूजर जो चला गया, ये हर एक यूजर्स का डेटा मेरा यूज करे, वो कभी भी नहीं करना है। जब भी कोई यूजर अपना ऑर्गेनाइजेशन लिफ्ट कर रहा है, तो सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है आईटी टीम मैनेज दैट लैपटॉप और डेस्कटॉप एंड दे आर परमानेंटली डिलीटिंग द डेटा। और डेटा को ऐसे डिलीट करना है दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। वो डेटा को कभी भी रिकवर नहीं किया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखोगे, वो हार्ड डिस्क को तोड़ देता है, वो स्क्रैप लिस्ट में आ जाता है। किसके लिए? क्योंकि वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ है। तो वट एवर द यूजर्स आर लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, दे डज नॉट थेप द डेटा। कोई भी डेटा को थेप नहीं करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यूजर्स का जो डेटा थेप करे तो बहुत दिक्कत होगा, वो कमिंग अंडर द कंप्लायंस पॉलिसी। बिकॉज हर एक कंपनी का एक पॉलिसीज होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोकल पॉलिसीज रहता है, इंटरनल पॉलिसी, एक्सटर्नल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So what is your responsibility? Whatever the users are left from your organization, you have to delete the permanently users, as well as you delete the user from the directory. Next point क्या बोल रहे हैं? Recycling or disappointing the obsolete equipment. मान लो यूजर ए ने कोई डिवाइसेस को यूज करे, जस्ट फॉर एग्जांपल 5 यूजर, दैट 5 यूजर हैव, every user have particularly 500 GB SSD for every user. So 5 into 100, what is going on? That all data going to what? Going to that all data going to delete it. ये इसको क्या करना है? You just have to delete the data. Thus, for example, every user have 500 SSD or 500 hard disk. You have to, what you do? You have to delete the data, and that also update in asset records. Asset records means this laptop is not in use, or the laptop is not assigned for user, the desktop is not assigned for user, or whatever the update list you have, वो कौन सा लिस्ट में चला जाएगा? वो फ्री लिस्ट में चला जाएगा कि दिस एसेट्स आर फ्री, दिस एसेट्स आर नॉट यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल दिस लिस्ट, ठीक है। जैसे मान लो कोई यूजर्स के लिए तुमने असाइन किया,
अभी यहाँ पे तुम मान लो इसी को ही अपडेट कर देना, जैसे मान लो ये वाला को मैं दे देता हूँ, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हैव टू रिप्लेस द लिस्ट फ्रॉम, तुमको क्या कर देना है, स्टेटस में फ्री कर देना है। इसमें तुम स्टेटस में कर दिया, फ्री कर दिया। व्हाट इज द फ्री, नॉट असाइन यूजर, नॉट असाइन यूजर, इस तरह से अपडेट कर दिया। इसमें तुमको क्या होगा, इसमें तुमको ये पार्टिकुलरली स्टेटस को चेंज कर देना है। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो तुमको ये मैनेज कर, which user use the device, which particular laptop is in active mode, which user who particularly use the laptop, who particularly use the desktop, what is the username, what it's particularly belonging for, ये हर एक चीज तुमको मैनेज करना है। मेनली ये 3 लोकेशन तो बहुत आना चाहिए, किसके लिए असाइन है, कौन डिपार्टमेंट के लिए असाइन है, और उसका लोकेशन क्या है, मतलब ब्रांच क्या है, this is branch A or this is branch B, you have to manage. Clear everyone? Please come. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. What is the next procedure? Next procedure is their practical responsibility. अभी सभी लोगों का माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये डेस्कटॉप सपोर्ट का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, डेस्कटॉप सपोर्ट क्या कर सकता है इसमें। सबसे पहला तुम्हारा फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ट्रैकिंग करना। क्या ट्रैकिंग करना होगा, मेंटेन रिकॉर्ड विच एम्प्लॉय असाइन विच डिवाइस। बहुत अच्छा से समझो, जैसे मान लो कोई यूजर को बहुत, अभी मैं तुमको लिस्ट समझा रहा हूँ कि आईटी इंडस्ट्री में एसेट्स को कैसे मैनेज किया जाता है और वो डेस्कटॉप एडमिन कैसे मैनेज करता है। तो पहले तुमने क्या किया, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो एक लैपटॉप हम यूज किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल लैपटॉप इज नेम, द लैपटॉप नेम फॉर एग्जांपल इलाइट बुक HP G9। मैं एकदम फ्रेश अच्छा से समझा रहा हूँ, समझो अच्छे से। तो पहले तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका सीरियल नंबर को मैनेज। दूसरा सीट में ही बना रहा हूँ। ये कौन सा लैपटॉप है, HP इलाइट बुक, ये HP का है, HP इलाइट बुक 840G9, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, मेंटेन द रिकॉर्ड विच एम्प्लॉय असाइन विच डिवाइस। तो यहाँ पे तुमको ये पार्टिकुलरली जो लैपटॉप है, ये लैपटॉप में सबसे पहले तुमको क्या असाइन करना होगा, नाम असाइन करना होगा कि ये नेम कौन यूज करे, या एम्प्लॉय का नाम क्या है, हु इज यूज दिस लैपटॉप। तो ये लिस्ट में देखो बहुत अच्छा से मैनेज किया हुआ है, दैट लैपटॉप यूज्ड बाय शरद, जस्ट फॉर एग्जांपल। और वो कौन सा डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम द HR डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ये, और डिपार्टमेंट क्या नाम लिख दिया, द डिपार्टमेंट इज HR डिपार्टमेंट, दिस इज HR डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्या बता रहे, जस्ट रीड दिस लाइन, अपडेट द एसेट लोकेशन, मॉनिटर एसेट्स, ट्रैक सीरियल नंबर एंड एसेट टैग्स। सबसे पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक लैपटॉप के लिए तुम्हारा असाइन करना है सीरियल नंबर, इसके साथ साथ तुम्हारा है सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर के साथ है तुम्हारा एसेट टैग, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। ये दो दो बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन शेयर करता है, यू कैन बाइंग फ्रॉम HP, दैट HP यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर। इस सीरियल नंबर से क्या आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो डिवाइसेस है, दैट इज द HP डिवाइसेस और डेल डिवाइसेस और एनी Lenovo devices you can identify. With the asset tag, what particularly responsible asset tag help for which particular organization use this? That laptop used by that laptop used by IBM, that laptop used by TCS, that a laptop assigned by Wipro, that you can check. Everyone clear? Please confirm. तो यहाँ पे तुम्हारा बायर इंफॉर्मेशन और बाइंग इंफॉर्मेशन
बाइंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा? बाइंग इंफॉर्मेशन में आएगा तुम्हारा डेट ऑफ परचेस एंड वारंटी। डेट ऑफ परचेस एंड डेट ऑफ वारंटी। और एसेट टैक्स में क्या आ रहा है? विच कंपनी यूज दिस डिवाइस? जस्ट फॉर एग्जांपल like TCS, Wipro, or IBM, or HCL, just like this. So this information is also very much important for the particular serial number and asset tax. At first, everyone clear the first point. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Not sir. only not only the laptop information, as well as mention or what monitor assets, monitor assets, laptop assets, desktop assets, serial the printer assets, or any type of assets. And what you can monitor the asset movement, where your IT assets are located, where your IT assets are available. That is available in branch 1, that is available in branch 2, that is available on branch 3, where the laptop is available, you can check. तो ये तुम्हारा क्या है? मॉनिटर एसेट मूवमेंट, मतलब यू कैन चेक द फिजिकल अवेलेबिलिटी। तुमको क्या चेक करना होगा कि वेयर द एसेट्स आर अवेलेबल फिजिकली, वेयर फिजिकली available. Example like branch 1, BRANCH, branch 1 or branch 2. Okay. In which branch, in which location your IT devices are available, you have to check. इसीलिए देखो यहाँ पे और एक लिस्ट मेंशन किया है, कौन सा? डिपार्टमेंट एज वेल एज द लोकेशन. These three details are very much important. Assign for what? Assign for which department and assign for the which location. Next is their what? Next is the next responsibility, updating. Update IT asset management system when the devices assign or transfer or repaired or returned. Keep warranty and license details. इसमें तुम्हारा वारंटी एंड लाइसेंस डिटेल्स को भी तुमको चेक करना है. तुम बोलोगे सर वो कैसे चेक करें? देखो उसको चेक करने के लिए मैंने अलग से एक particularly devices ये असाइन किया, वारंटी AMC ट्रैकिंग. So how it is managed? You can manage the serial number, you can manage the asset ID, then asset name, then vendor, then it's under in warranty or that is under in AMC. You can check. You also check the start date and end date. It's mean where your warranty available and where your warranty end. मतलब वारंटी का जो स्टेटस है वो तुमको यहाँ पे मेंशन करके रखना पड़ेगा कि इन व्हाट इज व्हेन द डिवाइस इज परचेस्ड एंड व्हेन द वारंटी एंड. कब वारंटी यूज हो रहा है और वारंटी खत्म कब हो रहा है. और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन में तुमको क्या देना होगा? या तो तुम डायरेक्टली वेंडर का नाम असाइन कर सकते हो, या और यू कैन असाइनिंग फॉर द पर्टिकुलर कंपनी, विच कंपनी बेसिकली प्रोवाइड फॉर द सपोर्ट. कौन कंपनी तुम्हारा वारंटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या AMC सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हु आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयर. You have to check this. Then also available here phone number and you can check the status. Which devices warranty is active, you can mention active status. Which warranty is already end, you can what you mention this is mentioned is expired. और जो जल्दी एक्सपायर्ड होगा वो किस में असाइन होगा? एक्सपायर्ड सून. तो इस तरह से तुम क्या मैनेज कर पाओगे? इस तरह से वारंटी AMC ट्रैकिंग को मैनेज कर सकते हो. एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. This Yes, is the sir. real time scenario, bro. I requested to everyone, if you not understood, if you not clear, loudly reply. यदि समझ में नहीं आएगा किसी को तो रेस्पॉन्स करो, नहीं तो
It's very difficult because in organization when you share your experience, na ki sir, yes, I have 1 year experience or I have 2 years experience. That time your mandatory skills is very much important. क्योंकि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कैसे मैनेज करते थे, हाउ विल मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशन डिवाइसेस, प्लीज टेल मी। तो ये सारी चीज तुमको बताना पड़ेगा, ये प्रोसीड्योर तुमको बताना पड़ेगा कि एकदम बायर से लेके रिटायर तक क्या क्या करना है। कोई डिवाइसेस का परचेस हिस्ट्री से एकदम लास्ट तक उसको कैसे मैनेज करो, कैसे असाइन करो, कैसे हैंडल करो आईटी एसेट्स को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज कॉल कमिंग अंडर द आईटी एसेट मैनेजमेंट। आई होप तुम लोगों का रिज्यूम में भी मेंशन है ना, आईटी एसेट मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. sir. नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आफ्टर अपडेटिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, after updating you can check the maintenance also. Maintaining, what maintaining? Perform regular system update, hardware check, repair, updates RAM and SSD, coordinate vendor maintenance, ensuring devices are functionally work properly. अब मान लो कोई यूजर ने इन्फॉर्म किया है, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो सुरेश के फेसिंग सम इशू, so how you can manage your particular details? Just for example, you are facing the SSD issue. Just for example, तुमने एक SSD issue face कर लो, your user directly inform you कि I am facing SSD issue, so please check my SSD status or please check my particular responsibility. इसमें तुमको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक द पर्टिकुलरली डिटेल्स ऑफ डिवाइसेस। तो डिटेल्स ऑफ डिवाइसेस में तुमको एसेट्स को चेक करना होगा। हु कॉल यू? शरद कुमार, शरद के, that where it is belonging from, that is belonging from the HR department. Now you can find out they are using which laptop, what is the particularly laptop serial number. Then you can call to the particular vendor team and manage your particular status. वो तुम्हारा वेंडर मैनेजमेंट पार्ट में आ जाता है, लेकिन वो भी तुम्हारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परफॉर्म रेगुलर अपडेट, हार्डवेयर चेक्स, रिपेयर्स, अपडेट्स, रैम एंड एसएसडी, कोऑर्डिनेटेड वेंडर मेंटेनेंस, एंश्योर डिवाइसेस आर फंक्शनली प्रॉपर्ली। कोई भी यूजर जब इन्फॉर्म करेगा, चाहे वो लैपटॉप इशू हो, चाहे वो डेस्कटॉप इशू हो, लेकिन हर एक पार्टिकुलरली पार्ट्स में, जैसे मान लो कोई लैपटॉप में रैम खराब हो चुका है, या कोई भी पार्ट्स में कोई भी तुम्हारा कोई भी पार्ट में तुम्हारा रैम इशू हो सकता है, या एसएसडी इशू हो सकता है, या तुम्हारा पर्टिकुलरली बोर्ड इशू हो सकता है, मदरबोर्ड इशू हो सकता है। कोई भी इशू को तुम आइडेंटिफाई कैसे करो? दैट इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सीरियल नंबर, एंड आफ्टर दैट यू कैन रेज द कॉल। किसको कॉल करना है? वेंडर को कॉल करना है। तो तुमको मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। राहुल, एनी क्वेश्चन? यस सर। में सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर यूजर सर कोई नॉर्मल आदमी भी हो सकता है या फिर किसी कंपनी का एचआर या फिर कोई स्पेसिफिक? सर ये मुझे पूछना था। यूजर कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम फॉर एग्जांपल यू आर सिलेक्टेड फॉर टीसीएस, जस्ट फॉर एग्जांपल, एंड व्हाट इज योर लोकेशन? जस्ट फॉर एग्जांपल योर लोकेशन इज नोएडा। तो नोएडा टीसीएस हैव मल्टीपल लोकेशन, राइट? साइड 1, साइड बी, या ब्रांच 1, ब्रांच बी। तो where you are responsible, where you are physically available, where you are physically online, okay? At that particular company or at that particular site you are responsible. Desktop, printer, laptops, desktop, and they are coming from different team. They are belonging from the IT team, they are belonging from the HR team, they are coming from any department. हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करना, not Okay. only the IT assets, you have to manage the HR assets also, you have to manage the back office assets also, because every user belongs to the depends on the assets ना। जो भी Yes. यूजर है, हर एक यूजर के पास लैपटॉप है, हर एक यूजर के पास डेस्कटॉप है, हर एक यूजर का डिपार्टमेंट में अपना प्रिंटर है। तो विदाउट लैपटॉप और विदाउट डेस्कटॉप
दे नॉट अवेलेबल। हर एक यूजर के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप हर एक चीज असाइंड है, तो वो मैनेज सर ये पूछना था कि सर मान के चले कोई नॉर्मल यूजर है, वो एक लैपटॉप खरीदा एचपी का, उसको इशू आ रहा है, तो वो भी एक यूजर हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं। वो तो कोई भी कॉल करेगा, कोई भी आके कॉल करेगा, तो उसको क्यों रेस्पॉन्स करना है? जो तुमको रेस्पॉन्सिबल है वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन को देना है। ओके जैसे मान लो तुम टीसीएस के लिए सिलेक्टेड हुए, तो तुम टीसीएस के बाहर कोई एम्प्लॉय को थोड़ी बोलोगे, ऑब्वियसली नहीं। यस सर, तुमको तो वो मेरा टीसीएस के डाउट। जिस ब्रांच के लिए तुम रेस्पॉन्सिबल हो, वो ब्रांच के लिए तुमको सपोर्ट देना। ओके सर। ठीक है। नहीं तो वो होता है ना सर कि टीसीएस है तो किसी थर्ड पार्टी के मतलब पेरोल पे वो तो काम कर रहे बताएगा ना, वो तो तुमको बताएगा कि भाई तुमको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या ओके तुमको ये चीज देखना है, तो वो तो पहले कंफर्म करेगा ना। ओके सर। हम्म। तुमको अलग से कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल है जॉब के लिए वो तुमको करना है। यदि तुमने टीसीएस के लिए तुम रेस्पॉन्सिबल हो, तो तुम टीसीएस को ही सपोर्ट दोगे, कोई दूसरा कंपनी को नहीं। ठीक है राहुल, कहाँ गया? सर फाइन सर। हम्म। ऐसा कोई हो जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? नो सर। नो ऑल सर। क्लियर? कौन है भाई? तो देखो और क्या बता रहे नेक्स्ट। तो देखो बहुत अच्छा से तुमको समझना पड़ेगा कि कोई भी यूजर्स का रिपेयर इशू हो सके, या अपग्रेड इशू हो सके, या कोई हार्डवेयर चेक्स के इशू हो सके, हर एक चीज को तुम मैनेज कैसे करना है? तुमको हर एक चीज यूजर्स के बिलोंग्स से मैनेज करना है, और यूजर के ऊपर ही तुमको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये पर्टिकुलरली यूजर ने कॉल किया, तो इसके अगेंस्ट में हमको एसेट चेक करना होगा। तुम तो ऐसे आइडेंटिफाई, मान लो तुम्हारे पास 1000 डिवाइसेस है, तो ऐसा तो नहीं कि तुम 1000 डिवाइसेस को तुम सब कुछ सीरियल नंबर पता है या सबका अपना एसेट आईडी पता है, नहीं। उसके लिए तुमको मैनेज करना होगा लिस्ट। सिक्योरिंग, सिक्योरिंग में क्या है? इंस्टॉलिंग एंटीवायरस, अप्लाई सिक्योरिटी पैचेस, एनेबल एन्क्रिप्शन, रेस्ट्रिक्शन, अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर एंड डिसेबल अकाउंट ऑफबोर्डिंग। यही चीज मैं बता रहा था वो रिटायरमेंट के केस में। रिटायरमेंट, जो यूजर रिटायरमेंट हो जाएगा, जो यूजर अपना ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिसेबल अकाउंट्स। तुमको क्या करना होगा? डिसेबल अकाउंट, जो अकाउंट रहेगा वो अकाउंट को भी क्या करना है? डिसेबल कर देना है। जस्ट गो टू द एक्टिव डायरेक्टरी, select the user, and then disable the account. How to disable? Just only check account is disabled। आई होप वो तुम लोगों को सिखाया था। रेस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज सॉफ्टवेयर, रेस्ट्रिक्टेड अनऑथराइज सॉफ्टवेयर मतलब मैंने तो पहले ही बोला कि जो यूजर्स तुम असाइन करोगे, वो यूजर ने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहा हो, दैट एप्लीकेशन इज एक्टिवेटेड और नॉट एक्टिवेटेड, यू कैन चेक। हाउ यू कैन चेक? इसके लिए भी तुमको एक लिस्ट फॉलो करना होगा। व्हाट इज द लिस्ट? दैट इज द कमिंग अंडर द सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस में तुमको हर एक चीज फॉलो करना होगा। नेम, सीरियल नंबर, सॉफ्टवेयर नेम, लाइसेंस की वर्जन, नंबर ऑफ लाइसेंस, एक्सपायर डेट, असाइन टू, वेंडर, कॉस्ट एंड रिमार्क्स। तो ये डिपार्टमेंट, डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर नेम Microsoft 365 बिजनेस एप्लीकेशन, गूगल वर्कस्पेस बिजनेस एप्लीकेशन, WPS प्रीमियम, या लिप। तो इसी तरह से हर एक एप्लीकेशन हर एक पर्टिकुलर यूजर के लिए असाइन है। अब इसमें तुमको ये देखना होगा कि पर्टिकुलरली क्या है, ये एक्टिवेटेड है या एक्टिवेटेड नहीं है, या ओपन सोर्स एप्लीकेशन है या फ्री है, या हमको एक्टिवेट करना है। whatever your responsibility, you have to manage and maintain with the help of list। ये भी तुमको चेक करना होगा लिस्ट के द्वारा। ये भी तुमको असाइन करना होगा कि किस डिपार्टमेंट के लिए तुम असाइन कर रहे हो। दैट दैट इज यूज फॉर द HR डिपार्टमेंट, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन डिपार्टमेंट, they are belonging from the account department, they are belonging from the operation department, and what particular application used, that is also managed and maintained। this is also what, this is software inventory or digital assets। इसको क्या कहेगा? दैट इज कॉल्ड द डिजिटल एसेट्स। और ये जो IT एसेट था, ये क्या था? ये फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स मींस
laptop, desktop, printer, USB printer. And desktop assets means whatever the applications you are used, that is in what state, that is in active state. जिसका हर एक एप्लीकेशन का क्या है, लाइसेंस है. Who provided by, what vendor provided by, that everything you can manage with this particular process, with this particular format. Everyone clear? Please. Clear, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुमको देखो लिस्ट देख के ही समझ में आ रहा है कि पार्टिकुलरली सॉफ्टवेयर किसके लिए है, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए. जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरी में डाल दिया, फॉर ऑफिस एप्लीकेशन, फॉर HR एप्लीकेशन, फॉर IT एप्लीकेशंस, फॉर सेल्स एप्लीकेशंस. देयर इज डिपेंड्स ऑन टोटली पार्टिकुलरली सब्सक्रिप्शन बेस. ये टोटली जो जितना भी लाइसेंस है ये किसके बेस में है, ये लाइसेंस बेस में है. तो ये भी तुमको मैनेज करना होगा. दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर द व्हाट, दैट इज कमिंग अंडर द डिजिटल एसेट्स. ये किसके अंडर में आएगा, डिजिटल एसेट्स के अंदर में आएगा. इसको भी तुमको रेस्ट्रिक्ट करना है. जो एप्लीकेशन हमको चाहिए नहीं, वो एप्लीकेशन को क्या करना है, डिसेबल कर देना है, नहीं तो बिलिंग होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिकवरिंग ऑल्सो. What is the recovering? Collected devices during employee exist. Collected devices during employee exist. What is the meaning? मान लो कोई यूजर्स तुम्हारा लैपटॉप यूजर है. अब वो लैपटॉप यूजर्स तुमको इंडस्ट्री में काम कर रहे. जो लैपटॉप यूजर के लिए असाइन है, तो जब वो कंपनी एग्जिट करेगा या कंपनी लेफ्ट करेगा, तुमको क्या करना है, वो लैपटॉप लेना है कि सर आपका जो लैपटॉप है वो ऑफिस में सबमिट करके जाओ, एंड देन यू कैन लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रिट्रीविंग एक्सेसरीज को बैक करने के लिए, परफॉर्मिंग डेटा बैकअप, सिक्योर डेटा वाइप, एंड रीअसाइन फॉर द स्टोर एसेट प्रॉपर्ली. ऐसा नहीं कि कोई भी यूजर कोई कंपनी के लिए हमने असाइन कर दिया. जस्ट फॉर एग्जांपल वन यूजर असाइन फॉर रामदास. अब वो रामदास मान लो 2 साल काम किया. अब 2 साल काम करने के बाद जब वो लेफ्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो जो लैपटॉप असाइन हुआ था, या जो प्रिंटर असाइन हुआ था, जो डेस्कटॉप असाइन हुआ था, वो वापस करना है कंपनी को. ठीक है. नहीं तो क्या होगा, वो एसेट चोरी हो जाएगा. ऐसा रिया एनी क्वेश्चन? यस सर. सर ये अगर कोई मतलब कंपनी को लीव कर रहा है, मतलब रिजाइन कर रहा है, तो फिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमें उससे एसेट्स रिटर्न लेने हैं? वो तो तो HR को पता ऑब्वियसली वो तो चलता है. HR के पास पता चलेगा ना. HR तुमको इन्फॉर्म करेगा कि ये यूजर ने लेफ्ट हो गया है, तो यू विल कलेक्ट द डिवाइसेस फ्रॉम पर्टिकुलर यूजर. ओके, HR विल इन्फॉर्म अस. नहीं तो वो लीव नहीं देगा. वो तुम्हारा लिस्ट, वो ऑफर लेटर, वो जो क्या बोलते हैं, रिलीविंग लेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके ओके सर. हम्म. और वो तुमको यूजर को कोई भी लैपटॉप असाइन करने के लिए पहले ही बता देना कि सर दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई गिव यू द लैपटॉप, यू हैव टू रेस्पॉन्सिबल कि व्हेन यू आर लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन यू कैन give me back this laptop to the organization. ऐसा नहीं कि वो लैपटॉप लेके चला गया, वो लैपटॉप लेके दूसरा कुछ काम करे. ऐसा नहीं होता है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तुम कोई यूजर्स की लैपटॉप असाइन कर रहे हो, जब वो यूजर लैप कंपनी छोड़ेगा, उस टाइम तुम्हारा लैपटॉप वापस करना है डिपार्टमेंट को. तो इसका मतलब क्या, रीअसाइन, ये तो चलो क्लियर हो गया. सिक्योर डेटा विद परफॉर्मिंग डेटा बैकअप, इट्स ओके. रीअसाइन और स्टोर एसेट्स प्रॉपर्ली. जो मैंने अभी भी बोला ना कि जो एसेट फ्री हो गया, वो तुमको पर्टिकुलरली किसके लिए डाल देना है, फ्री में डाल देना है. जैसे यहाँ पे मैंने फ्री में डाल दिया. फ्री में क्या डाल दिया, फ्री फॉर नॉट असाइनिंग एनी यूजर, नो नॉट असाइन यूजर. तो इसके लिए तुम क्या करोगे, कोई न्यू यूजर जो आएगा, असाइन फॉर द न्यू यूजर, तो ये न्यू यूजर के लिए पर्टिकुलरली है. ठीक है. तो ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस तुमको इधर भी दिया और इधर भी तुमने अपडेट कर दिया तुम्हारा अपना नॉलेज के लिए, नॉट असाइनिंग यूजर. ठीक है.
क्योंकि तुमको हर एक चीज को मैनेज करना होगा, आईटी एसेट्स को मैनेज करना होगा, जो भी एप्लीकेशन रहेगा वो एप्लीकेशन में प्रोडक्ट की है या नहीं है वो मैनेज करना होगा। एवरीथिंग मैनेज बाय यू एंड योर कंपनीज प्रोस्पेक्टिव, कंपनीज पॉलिसी। You always follow the company's rules, company's policy. After that, what is going on? After that, you have to reporting. What is the reporting? Generate inventory report, asset allocation report, warranty status report, license compliance report, support audit documentation. ये भी किसका responsible है? That is responsible to manage the IT team. Inventory report. I already show you inventory report. Asset allocation reports. Asset allocation is also very much important, and that's why you can see assets also list is here. This is the asset, this is the software license, this is the warranty assets. This is also very much important, which is coming under warranty, which is warranty is active, which warranty is expire. That also you have to manage and maintain. And what is your interview answer? How will organize, how will give you the particularly organization, मतलब organization में तुम कैसे बोलोगे? तो इंटरव्यू में तुमको यही बोलना है कि इन माय प्रीवियस रोल आई हैंडल एंड टू एंड एसेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग tracking devices allocation, maintaining accurate records, performing preventive maintenance, ensuring endpoint security, recovering assets during offboarding, and generating audit reports. This helps to reduce asset loss and improve the compliance and maximum downtime. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कोई भी यूजर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यूजर मैनेज करने से पहले यूजर्स का जो पेरिफेरल्स है वो पेरिफेरल्स चेक करना होगा। That is very important. Not only the configuration part is important, that also you can check the status, the laptop status, the particular performance, how the laptop working, how the desktop working, how printer working, how applications are running, the application is properly running or not, that is in active state or not, the any new updates are coming, that is also response. Not only the installation, सिर्फ तुमको ओएस इंस्टॉलेशन करके ही छोड़ना नहीं है, ओएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एसेट मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन? No, sir. No, sir. No, sir, कोई क्वेश्चन नहीं। No, sir. देखो मैंने भेज दिया, एक बार चेक कर लो। एवरीवन रिसीव्ड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. And I requested to everyone, please also take the format also. That format also very much important. I requested to everyone take the screenshot. I send you this small. So this is the particular details. You have to manage the serial number. After serial number, you can check the asset ID. After asset ID, you can check the asset type. After asset type, you can check the asset name. After that, you can mention the brand. Then you can mention the serial number. Then purchase date. Then vendor details. Then warranty status, warranty in inquiry,
then assign to particular which particular user name basically. Then department, that user belongs to which department, what is the location, what is the status, what is the condition, what operating system you have to install, what is the particular details, IP addresses, last audit date, and remarks. Okay. These details are very much important when you are manage the assets. Okay. These details are very much important. Next part is the software license. Software license, what you mentioned? First of all, you just mention the serial number, then software name for which particular purpose. For office purpose, so office application. For HR purpose, so HR application. For IT purpose, so for IT application. I mean, you can mention the method. Then you can mention the particular license key, then versions, then number of license, expire date, assigned to, for uh, which particular use this, to which department use this application, then vendor, which vendor provided the license, just like Microland, Sebex Technology, Kingsoft, LibreOffice, Zoho, particularly the vendor name. Some organizations provide directly and some organizations providing the support about the vendor wise. कोई कंपनी डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, कोई 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 जो लाइसेंस है वो पर्टिकुलर कंपनी प्रोवाइड करते हैं. जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड, डायरेक्टली तुम माइक्रोसॉफ्ट से भी खरीद सकते हो या तो डायरेक्टली तुम वेंडर से भी खरीद सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोलैंड. जस्ट फॉर एग्जांपल VMware सर्वर डेटा सेंटर, ये तुम माइक्रोसॉफ्ट का जो पार्टनर होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट का पार्टनर है वो है माइक्रोलैंड प्रोवाइडिंग दिस लाइसेंस. तो ये लाइसेंस पार्ट डिपेंड्स करता है वेंडर के ऊपर कि विच वेंडर पे प्रोवाइड विच पर्टिकुलर लाइसेंस एंड who are distributor who are providing the services that you can identify. तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पार्टनर डिटेल्स रहेगा, वो पार्टनर डिटेल्स तुमको फॉलो करना है. सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं. तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले सीरियल नंबर के बाद है सॉफ्टवेयर नेम फॉर विच पर्पस यूज. ठीक है, फॉर विच पर्पस. उसके बाद है तुम्हारा लाइसेंस की के बाद है वर्शंस के बाद नंबर ऑफ लाइसेंस मींस व्हाट नंबर ऑफ लाइसेंस यू नीड, 2 3 4. Then also you can see the expire date, when the application got renewed, assigned to for what particular user, vendor name, which vendor you are buying the license, what is the approximate cost, and what is the remarks. So this part is very much important, managing the particularly
तो दिस इज मैनेज द सॉफ्टवेयर एसेट्स and first one is the IT assets. This is the digital assets or software assets. सबको क्लियरली समझ में आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next is very much important, which is the AMC, warranty AMC tracking. Warranty AMC tracking means अभी सभी लोगों को देखो मैं प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ तो और अच्छा से समझ में आएगा. जस्ट ओनली चेक माई लैपटॉप. जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लैपटॉप. जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई लैपटॉप. अब ये लैपटॉप में हम चेक कैसे करेंगे, इसमें वारंटी कैसे चेक करना है? हमको तो पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि दैट पर्टिकुलर व्हिच यूजर व्हाट, मतलब यू कैन जस्ट सी द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर हार्डवेयर डिटेल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट विथ हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू गेट लैपटॉप और डेस्कटॉप डिटेल्स. बहुत अच्छा से समझ लो क्योंकि ये तुमको हर एक चीज में करना पड़ेगा प्रैक्टिकली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट द स्टिकर. सबसे पहले तुमको फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी का करना होगा फाइंड आउट द स्टिकर. सबसे पहले तुमको स्टिकर को फाइंड आउट करना है. स्टिकर मीन्स वेयर serial number is available. ठीक है. सबसे पहले तुमको वो स्टिकर को फॉलो करना है जहां पे तुम्हारा पर्टिकुलरली सीरियल नंबर अवेलेबल है. सीरियल नंबर यदि अवेलेबल नहीं है, स्टिकर नहीं, स्टिकर है तो रहेगा 100%. बट इफ यू आर गेटिंग मोर डिटेल्स देन फाइंड आउट विद द डिटेल्स. कैसे तुम डिटेल्स में चेक करोगे? तो ये तुम्हारा डिफरेंट प्रोसेस है. और गो टू रन. सबसे पहले हमको कहाँ पे जाना होगा? रन में जाना होगा. एंड व्हाट आर टाइप हियर? जस्ट टाइप CMD. एंड अंडर द CMD व्हाट आर टाइप हियर? जस्ट टाइप हियर WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर. कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले CMD में जाना होगा. आफ्टर CMD व्हाट आर टाइप हियर? WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर. जैसे तुम WMIC, मैंने कमेंट भूल किया है, WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर. तो जैसे हम इस तरह से WMIC BIOS गेट सीरियल नंबर किया, देखो मेरा डिटेल्स, मेरा जो लैपटॉप का डिटेल्स है वो लैपटॉप डिटेल्स आ चुका है. कौन सा डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है? तो मेरा जो SN नंबर है, SN नंबर और सीरियल नंबर यहाँ पे है 5 CDN CD1286 LR7. तो ये मेरा क्या है? ये मेरा पार्टिकुलरली सीरियल नंबर है. अब ये जो सीरियल नंबर है ये तुम चेक कैसे करोगे? इसके लिए तुमको जाना होगा पार्टिकुलरली हर एक अपना अपना वेबसाइट. यदि तुम्हारा HP का लैपटॉप है तो support.hp.com. यदि तुम्हारा डेल का लैपटॉप है तो डेल के लिए डेल support.dell.com. ठीक है. डेल के लिए अब दूसरा है, डेल के लिए तुम्हारा सर्विस टैग है. ठीक है, सर्विस टैग. ठीक है. डेल के लिए तुम्हारा सीरियल नंबर नहीं है, उसके बाद सर्विस टैग करके शो करेगा. सर्विस टैग कोलोन देन तुम्हारा सीरियल नंबर. ठीक है, याद रखना. तो कैसे सर्च करेंगे? सबसे पहले हमको support.hp.com में जाना है. तो चलो चलते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे गया मैंने support.hp.com और support.hp.com में गया. अभी देखो यहाँ पे तुमको कहाँ पे जाना होगा? जस्ट क्लिक ऑन द सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स. बहुत अच्छा से समझो. सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स में जाना होगा.
सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स में जैसे ही जाओगे यहाँ पे तुम्हारा डिटेल्स शो करेगा। प्रिंटर डिटेल्स चेक करना है तो प्रिंटर में जाओगे, लैपटॉप डिटेल्स में जाना है तो लैपटॉप में जाओगे, डेस्कटॉप डिटेल्स चेक करना है तो डेस्कटॉप में जाओगे। तो इसी तरह से तुमको पर्टिकुलरली डिटेल्स में जाना होगा। जैसे मेरे केस में लैपटॉप है तो आई जस्ट चेक द लैपटॉप डिटेल्स। और जैसे मैं लैपटॉप डिटेल्स में जा रहा हूँ, अपना यहाँ पे देखो बहुत अच्छा से मेंशन है, एंटर योर सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नंबर। तुमको कोई भी हार्डवेयर को फाइंड आउट करने के लिए तुमको क्या देना होगा, यू हैव टू मेंशन द सीरियल नंबर और यू कैन मेंशन द प्रोडक्ट नंबर और यू कैन सी द प्रोडक्ट नेम। कोई भी डिटेल्स तुमको डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा लैपटॉप का डिटेल्स डाला है, तो जैसे मेरा लैपटॉप डिटेल्स डाला है, देखो मेरा जो लैपटॉप है दैट लैपटॉप डिटेल्स आर कमिंग। सबसे पहले ये डिटेल्स सबसे पहले शो कर रहा है। थोड़ा सा सर्च होगा, ये टोटली डिपेंड्स करेगा अपने ऑफिशियल तुम्हारा वेबसाइट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। इतना दूर तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले कंफर्म करो। यस Clear. सर। Yes, sir. क्लियर है सर। Yes, sir. अभी यहाँ पे सर्च कैसे करोगे, हम कैसे समझेंगे कि ये मेरा एक्सपायर में है या क्या है, कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे एक सेटिंग सर है, गेट प्रोडक्ट सपोर्ट करके। जैसे मान लो ये तुम्हारा लैपटॉप है, चलो ठीक है, अब लैपटॉप में तुमको कहाँ पे जाना होगा, गेट प्रोडक्ट सपोर्ट में जाना। तो गेट प्रोडक्ट सपोर्ट में चला गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे चीज है, ट्रबल शूटिंग है, सिक्योरिटी है, वायरसेस है, सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर्स है, स्टेटअप गाइड है, स्पेसिफिकेशन, एक्सेसरीज है, ठीक है, अकाउंट एंड रजिस्ट्रेशन है, वारंटी एंड रिपेयर है। तो देखो यहाँ पे वारंटी स्टेटस में देखो यहाँ पे क्या शो कर है, एक्सपायर्ड शो कर है। तुम जब फुल डिटेल्स में जाओगे यहाँ पे तुम्हारा हर एक डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, कैसे चेक करोगे यहाँ पे देखो, बहुत अच्छा से समझो, यहाँ पे बहुत अच्छा से मेंशन है। क्या, कवर, कवर टाइप फैक्ट्री वारंटी, सर्विस टाइप वारंटी, हार्डवेयर मेंटेनेंस ऑफ साइट, स्टेटस क्या है, एक्सपायर्ड। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, मतलब जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा था, उसमें तुम्हारा वारंटी कब था, बाय परचेस का डेट क्या था, 11 अगस्त 2021। और जो वारंटी एक्सपायर हुआ वो तुम्हारा कैसे हुआ, तुम्हारा यहाँ पे मेरा 1 साल का वारंटी था, यहाँ पे देखो August 10, 2022। तो ये पार्टिकुलरली डिटेल्स तुमको चेक करना है कि तुम कैसे चेक करोगे। तो ये है पार्टिकुलरली तुम्हारा डिटेल्स कि हाउ टू चेक द पार्टिकुलरली वारंटी स्टेटस। वारंटी स्टेटस यदि एक्टिव है तो एक्टिव मोड में दिखेगा, यदि वारंटी स्टेटस ऑफ है तो मतलब एक्सपायर्ड हो चुका तो एक्सपायर्ड शो करेगा। Onok Kumar, any question? Sir, this class only for Hindi people. Hindi, English both. Both. Hmm. So basically, how to check? You can go to the particular this way, and after that you can check this another details also. WTY HP support for initial setup, that is also available. 11 August 2021 to November 8, 2021. So that is totally depends which particularly level, that is 2 hours remote response. Matlab you can check the details of repair or details of service details, where you can getting all the details, HP status, if your laptop already provided 2 times warranty, 2 times repair, that details also there. कोई भी लैपटॉप में मान लो तुमने 2 बार सर्विसिंग हुआ या 3 बार सर्विसिंग हुआ, दैट सर्विसिंग डिटेल्स आल्सो यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस लिस्ट। तो ये कैसे चेक करना है तुमको, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द सीरियल नंबर। ये तुमको सीरियल नंबर के हिसाब से चेक करना होगा। एवरीवन क्लियर? प्लीज कंफर्म, देन आई गो टू नेक्स्ट। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. कंफ्यूजिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these details are very much important because when you are managing the IT assets, that time you always check the details of warranty, also check the details of your status of your computer, status of your laptop, status of your desktop, it's running properly or not, any performance issue, any
service issue, you have to check with this way. If you go to more details for HP support dot dell.com, then where you go, just go to support.dell.com. Support.dell.com. After support.dell.com, here also you will getting the same. How to get? Just click on the support. Under the support, you can check. Particularly, there is lot of details. Support home, support library, support services and warranty. Under the service, support and warranty, here also you can check the details. Here also you can how to check. I already told you. Here don't see the serial number. You can see the Dell service tag. Service tag details you have to mention. If anyone have laptop, Dell laptop, please raise your hand. यदि किसी के पास Dell laptop है तो अपना hand raise करो. Joy, please share your serial number in the chat box. Joy, please unmute first. Okay, sir. How to check? You just go to type here first, go to CMD, and after CMD, what you type here? WMIC BIOS gate serial. I already send you the steps. Just go through this. And then tell me the particularly serial number. So I give you one, for example, I have one example is there latitude E7400. Service tag is what? This one is service tag. So just for example, I enter the details. Okay. Here also you can see this particularly all details. Basic support where your warranty is completed. If you're getting to more details, then you can go to the particularly device details. And if you go to manage service, then you're getting multiple details. So I just go to device details. You're getting all the information. Okay. Here every information are here. Service event is there. What particular SR or service requested generate, that is also visible. Everything you can get from this particular information. Just for example, here you can getting these details just for basic support. You can see here all details are available. What is the status? Status is end on. When it is started date is September 22, 2024. And when the warranty is end, November 23, 2027. Every details you are getting from here. And what particular services you are happening, what particular warranty, I mean, what type of troubleshootings are there, any parts change or any parts replace, that all details also available in this format. यहाँ पे तुमको सर्विसेज का टाइप भी देखने को मिलेगा कि what particular details are available, what particular services done by service provider. तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हुआ है, देखो यहाँ पे रिमोट सपोर्ट में लिया था, Dell service provider taking control of remote and then checking the problem. तो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा से मेंशन है, on site service after remote diagnosing consumer or customer, next business day on site after remote diagnosis from business customer. तो यहाँ पे तुमको सर्विसेज का हिस्ट्री तुमको पता चल जाएगा कि जस्ट फॉर एग्जांपल यू आर असाइनिंग ए लैपटॉप टू अ पर्टिकुलर यूजर, तो वो यूजर का सर्विस हिस्ट्री में 5 साल का सर्विस हिस्ट्री चाहिए, या जो भी तुम्हारा 1 साल या 2 साल या 3 साल वारंटी के अंदर जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए, वो हर एक चीज डिटेल्स तुमको इस तरह से पता चलेगा. दैट ऑल आर कमिंग अंडर द पर्टिकुलरली मैनेजमेंट पार्ट. ये सब कुछ तुम्हारा मैनेजमेंट पार्ट में आता है. इफ यू गोइंग टू मोर डिटेल्स इन द लेनोवो, तुमको कहाँ पे जाना होगा? support.lenovo.com. support.lenovo.com. तुमको ऑनलाइन ही चेक करना होगा. एवरीथिंग यू कैन चेक ऑनलाइन, बट हाउ यू कैन चेक? ओनली विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलरली सीरियल नंबर और पर्टिकुलरली सर्विस टैग. या तो तुम डिटेक्टेड प्रोडक्ट से भी कर सकते हो. यदि तुम्हारे पास नहीं पता कि सर I forgot the particular
process ki how to find out the serial number or how to find the model number, then you can already getting one settings which is detect product. यदि तुम्हारा लैपटॉप में अवेलेबल है इंटरनेट, इफ यू हैव इंटरनेट देन ऑब्वियसली यू कैन गेटिंग दिस पर्टिकुलर। तो तुमको यहाँ पे कहाँ पे जाना होगा, जस्ट क्लिक ऑन व्यू पीसी सपोर्ट। अब व्यू पीसी सपोर्ट में भी तुमको यहाँ पे पीसी का डिटेल्स डालना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एंटरिंग लेनोवो आइडियापैड, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम मेंशनिंग दिस वन थिंकपैड में आइडिया थिंकपैड, क्योंकि थिंकपैड सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल थिंकपैड 15, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लैपटॉप का डिटेल्स है। अभी यहाँ पे तुमको सीरियल नंबर चेक करना है तो सीरियल नंबर यहाँ पे डालना होगा, देन क्लिक ऑन डिटेक्ट। जैसे तुम डिटेक्ट करोगे तो डिटेल्स शो करेगा। Here also you can set things every details, warranty and services, driver and software, troubleshooting and diagnose, guide and manual, that every details you can check। वारंटी स्टेटस चेक करने के लिए तुमको यहाँ पे सीरियल नंबर में जाना होगा, सीरियल नंबर देना होगा, देन यू कैन गेटिंग ऑल द डिटेल्स। तो यदि किसी के पास लेनोवो का सीरियल नंबर है तो भेजो मेरे को। जैसे आदित्य ने मेरे को और गजेंद्र ने हमको एक सर्विस टैग भेजा है डेल का, तो मैं डेल का एक एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ। सपोर्ट में जाके सपोर्ट एंड वारंटी, एंड आफ्टर दैट आई जस्ट सिंपली मेंशन द डिटेल्स एंड देन सर्च। देखो ये पर्टिकुलरली वॉस्टो का मॉडल है, आदित्य ने भेजा है। तो यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छा से मेंशन है। जस्ट क्लिक ऑन द बेसिक सपोर्ट, जस्ट क्लिक ऑन these details, just go to the device details, you are getting all the information, ठीक है। This is the details. If you click on more details, this is the particularly service details, and you can check the particular warranty status also। जैसे यहाँ पे वारंटी कब था, यहाँ पे वारंटी है नवंबर 13, 2023। तो ये डिटेल्स तुमको देखना पड़ेगा। प्रॉपर सॉल्यूशन में जाओगे तो और भी जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो। If you're getting more details about the product specification, then you can check this। पूरा A to Z parts में available है। Every details are you are getting over here। Now I show you the particular warranty details. Just for example, for Lenovo laptop. So at first where I go, just go to the support. After support, you can go to the PC। After that where I go, just click on detect product or browse product। तो browse product में जाना है। browse product में लैपटॉप में गया, मैं यहाँ पे डिटेक्ट प्रोडक्ट में जा रहा हूँ डायरेक्टली सीरियल नंबर के द्वारा। जस्ट एंटर द सीरियल नंबर एंड एंटर। Everyone see the details is visible here। Lenovo ThinkPad 15P। राहुल तुम्हारा यहाँ पे आसूस का लैपटॉप है, लेनोवो का नहीं है। ये किसने भेजा है, कल्पेश। कल्पेश getting one details, everyone see the details is the Lenovo IdeaPad IdeaPad 3 15 IGL05। here also available the details। देखो यहाँ पे भी हर एक डिटेल्स अवेलेबल है। you can go to the product details।
प्रोडक्ट डिटेल्स में जाओगे तो यहाँ पे तुमको व्यू वारंटी में जाना होगा। व्यू वारंटी में जाओगे तो A to Z डिटेल्स तुमको देखने को मिलेगा। दैट इज ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। The start date is 17 11/2021 and expire date is 16/11/2023. So where you will getting these details? All details you are getting from the website, an official website. You have HP laptop, you go to HP website. You have Dell laptop, you go to Dell website. You have Asus laptop, go to Asus website. You have SR laptop, go to SR website, and you can check these details. Clear everyone? सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now I can show you the SR also. Here also you can go to the support website, drivers and here also you can check these details, warranty information. Here you can mainly mention your serial number, enter your serial number, SNID and part number PN. हर एक वेंडर का अलग अलग, जैसे डेल सर्विस टेक, HP, लेनोवो serial number. You have to mention these terms. Remember these terms. Getting one details laptop Asus. अच्छा SR के पास कोई लैपटॉप है? SR लैपटॉप, प्लीज शेयर द सीरियल नंबर. Now go to the Asus website. Asus warranty check. Here also going to the warranty status inquiry. Here you can check the status. So simply what I do, simply enter the serial number and then click on the submit. Then you are getting the details. Okay. The detail, what is the product name? Product name is notebook system. What is the model name? Model name is this. What is the serial number? This is the serial number. What is the warranty expire date? That is 23 March 2023. So that every details you are getting from here. ये हर एक डिटेल्स तुमको इसी तरह से देखने को मिलेगा. ठीक है. So this is the details you can check from with this here. You can check the warranty status to the official website. SR laptop, the SR website. Asus laptop, the Asus website. Lenovo laptop, the Lenovo website. Dell laptop, the Dell website. HP laptop, the HP website. These are the whole details. That every details you can check with this process. Any doubt, any question up to now? No, sir. No question, sir. No, sir. No, No, sir. No, sir. sir. And if you have the printer also, if you tell me, sir, printer also how to check, here also you can go to the same way. Just for example, I have HP LaserJet. So when you can check the HP details, you just go to the support.hp.
After support.hp.com, where you go, just go to software and driver. After software and driver, where you go, just click on printer. Here you can check the details. How to check the details? Just only enter the details. Just simply enter the HP printer name. The HP printer name I just mentioned here, HP LaserJet. Just for example, I mentioned HP LaserJet 1020. So simply here also you'll enter the details. Here you can getting the same information where the system is supported, that is systems supported for the Windows 10 laptop or Windows 11, which operating system that particularly support, that you also check. Here also you can check the get product information. Here also you can enter the serial number of printer, and then you can submit the request. And after the submitting the request, then you are checking the details also. इसके बाद भी तुमको डिटेल चेक करना है कि वारंटी स्टेटस की। तो कैसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो? यू विल ओनली फाइंड आउट द वारंटी डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर की हेल्प से ही हमको क्या करना होगा, पर्टिकुलरली डिटेक्ट करना होगा। एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? सर वो जो प्रिंटर का जो मॉडल नंबर रहता है वो स्टिकर में लिखा रहता है ना सर? या वो स्टिकर में रहेगा। हाउ टू चेक दैट? जस्ट ओनली चेक विद दिस। जस्ट फॉर एग्जांपल HP LaserJet 1020 plus. How to check this? You can check with this backside. In the backside, you can check the details. What is your serial number? Here you can check the serial number. This one. Okay. Canon also have the Canon also you can check the particular asset sticker details also. Just for example, printer serial number of Epson. Here also you can see Epson series printer. This one. What is how to check the serial number? You can see the model number. This is the model number. And what is the serial number? This is the serial number. NATY 200521. This is the serial number. This is the details. Model name is M36 M36 36 2A. And what is the serial number? This is the serial number. And every time you remember them that whatever the assets you have to mention, model name is different. Just for example, brand. This is the brand. What is the model? Asset name. Asset name is model. And which one is the serial number? This one, the serial number. To both, बताओ. Any question? Subodh, any question? Hello, hi. Rahul, any question? यस सर, बट दूसरे चीज से रिलेटेड है सर। दूसरे चीज मतलब? सर मतलब हम लोग के क्या बोलते हैं इंटरव्यू में जो मतलब क्वेश्चन मिले हैं, तो वो लोग मतलब लिखे हैं उसमें कि अगर पूछेंगे कि
टिकटिंग टूल कौन सा यूज करते हो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए? तो बोलना कि वी हैव आवर ओन क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल। तो ऐसे बोलने पे मतलब मैंने बोला था, एक कॉल आया था तो वो बोल रहे थे कि मतलब टूल का नाम बताओ जो आपके कंपनी में यूज हो रहा है। उसमें तो मेंशन है सीआरएम टूल। तो मैंने बोल दिया था मैनेज इंजन और सर्विस नाउ। हम्म। तो फिर वो मतलब पूछ ही रहे थे कि वो टूल बताओ, तो मैं तो उस टाइम थोड़ा सा स्टक हो गया था, वही बोल रहा था। स्टॉक मतलब जो गणेश सर ने दिया है स्क्रिप्ट, वो वही बताओ जो तुमको प्रीवियस सेशन से मिला है। नहीं सर, वो पूछते हैं ना कि सीआरएम टूल कौन सा तुम यूज किए हो, तो हम लोगों ने तो कभी लाइव काम किया नहीं। तो थोड़ा बहुत जो बताया गया है आईटीएल में कि सर्विस नाउ और मैनेज इंजन, हम्म। तो वही सर पूछ रहे थे, तो वही बोल रहा था मैं। बस वही जो तुमको स्क्रिप्ट दिया गया है, मतलब जिस जिस जो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए बोला है वही फॉलो करो। जो टीचर ने डिस्कस किया, सर्विस नाउ या जीरा या तुम्हारा मैनेज इंजन, जो भी है, जो भी ओके तुम्हारा डिस्क्राइब हुआ है वही बताना है। ओके सर। और एक चीज तुमको पहले से ही बता देता हूँ, जब भी तुम कोई भी यूजर्स को तुम लैपटॉप असाइन करोगे, दिस एसेट मैनेजमेंट लिस्ट इज वेरी मच important. You are going to any IT organization, that is your first responsibility to manage the particular IT assets. Which user use this laptop, what is the username, what is the laptop serial number, what is the status of warranty, what particular application are installed, the operating system is installed, that is licensed or not, this is activated or not, what particular application you are installing, application list, everything, that is your first responsibility. Before assigning any laptop, you have to follow those all steps whatever I discussed today, because this asset also coming under the compliance. Okay, so that part is very much important for all the IT, whatever the role you are going, desktop support or IT support or technical support, that is the first responsibility. And this list must be followed when you are manage the assets. That time you have to follow this all details. When you are manage the um, software assets or digital assets, you can see this all. And one more details already there, this is the warranty MC, this is also remember. Serial number, asset ID, asset name, vendor, warranty or MC type, start date, end date, contact person, and phone number and status. This is the details you have to remember. Because these all are coming under the what part? This is the coming under the asset parts.
Tell me if any other questions are available. Sir, in my PC, hello, sir. Tell Hello. me. In my PC, WMIC BIOS get serial number not working. HP laptop. WMS is not working, then you can add the extension. Like what? Add one extension. Add WMIC extension. After the WMIC extension, you are getting the details. Okay, sir. I show you this also. Just give me some time. At first, you go to the settings tab. Where you go, just go to the PC settings. I mean, where you are getting the, and after that, where I go, after that, you can search here the extension, which is called optional features. At first, where I go, first of all, you just go to the start button. सबसे पहले तुमको कहाँ पे जाना होगा? Just click on the start button. After start button, where you go, just go to the settings. After settings, what you type here? Here you can search here optional settings. What do you search here? Optional. Optional features. ठीक है? After optional features, where you go, just click on the view or edit optional features. After that, you are getting one changes. Do you want to allow to make changes the devices? Yes. After devices, here you can search here WMIC. What you search here? Here you can search here WMIC. Then you can just click on, just here it's already added here, but if you remove, then click on remove. तो तुमको यहाँ पे WMIC को क्या करना है? ऐड कर देना है. Don't remove the features, just only add the features. How to check that features that is added or not? You just go to the view history. Under the view history, you are getting all the details. View settings, you can get these all settings. Okay. Under these settings, these particular settings are visible. And what particular settings you have to enable here? Just only enable the WMIC settings. Right now the features is already added in my laptop. That's why it's visible here remove, but you have to add manually. Who are getting this issue? किसको ये issue आ रहा था? राहुल. नो सर, इशू नहीं आ रहा था, बस कॉल आया था मुझे सर। मेरा कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, बस लास्ट राउंड बचा था, क्लाइंट राउंड, तो उसमें क्या होता वो पूछना था। वो तुम HR से पूछ लो, जो भी तुमको रेस्पॉन्सिबल है पर्टिकुलरली सपोर्ट के लिए. किसका क्वेश्चन था वो? जिसका क्वेश्चन था एक बार अपना हैंड रेस करो. आकाश. आकाश बताओ क्या क्वेश्चन है एक बार. Sir, like that was not working. WMIC. That's what Yeah. question. Are you getting this particularly? जो अभी जो बताया ये समझ में आया? Yes, sir. I understand. Clear now. You have to add the WMIC features and then you can try. Okay. This is coming under the optional features. And that features, where you go, that features you go to the view and edit optional features. View and edit optional features, then you can go to the view features. Okay.
Under the view features, you can see the features. Whatever the features you need, you have to enable here. Okay. T Akash Reddy. Sir, okay, sir, understand. Thank you, sir. Okay, so thank you for today's class. Tomorrow I'm discussing the vendor management. Okay, what vendor useful, what purpose use the vendor, how to manage vendor toll free number, vendor mail ID, everything I shared tomorrow. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Who is Thank you, not sir. clear? Who is not clear today's class? Please raise your hand. किसको किसको समझ में नहीं आया? कल्याणी समझ में नहीं सर, आया? हेलो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था सर। मुझे अच्छा, स्टार्टिंग में क्या हुआ तो मुझे पता नहीं सर, एक बार बता सकते हो क्या? स्टार्टिंग में वो थ्योरी पार्ट मैंने डिस्कस किया था कि हाउ टू मैनेज द एसेट्स, व्हाट पर्टिकुलर मॉडल यू कैन, व्हाट पर्टिकुलर प्रोसीड्यूर यू हैव टू फॉलो, दैट आई डिस्कस. आप सर कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड की थी क्या सर? नोट्स वगैरह नहीं, वो बायोस को कैसे चेक करना है, आई मीन सीरियल नंबर को कैसे चेक करना है, दैट आई डिस्कस. WMIC बायोस गेट सीरियल. एक बार बता सकते हो क्या सर आप? मैंने वो आप एचपी का बता रहे थे ना, तब ज्वाइन किया, मेरे को पता नहीं था सर। अब मतलब मेरे को कल बताया था कि 6:30 को क्लास है। अभी मतलब मैंने ओपन किया तो मेरे को अभी क्लास दिखा लाइव, तो मैंने ज्वाइन कर दी। एक्चुअली मैंने कैसे किया था, जस्ट ओनली गो टू रन एंड आफ्टर गो टू रन जस्ट टाइप CMD and after CMD what I type here, just type here WMIC BIOS gate serial number. WMIC BIOS gate serial. This is the command you have to read. With this particular command you have to see the serial number. Okay, Kalyani. From tomorrow you can join at time. Okay. Okay, thank you everyone. थैंक यू सर। अपनी औकात से बड़ा, अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहना चाहिए, क्या पता. ठीक है, thank you.